ग्रहण आज जे अतिथि अच्छा से होती प्रोफेसर चित्तरंजन नायक, संगठन संपादक स्वामी विवेकानंद लोक संसद एवं तांको सहित जे आज आलाप करिवे से होचंती श्री हरिशंकर पांडे सर, जे कि सदस्य सेवा और ग्राम विकास विवेकानंद लोक संसद ओडिशा, साथी रे से भी मध्य एनबीसी कॉलेज रो गंजाम रो मध्य प्रिंसिपल भाव में दायित्व वहन करछंती एवं आज जे पुण्य पवित्र संध्यारे एक सुंदर आलोचना को आमे विषय वस्तु को नहींचे। ये विषय वस्तु रे आज सांप्रतिक भारतीय अर्थनीतिर अवस्था या पर आलोचना हबो एवं आलोचना रे हमर प्रोफेसर चित्तरंजन नायक जे कि संगठन संपादक से आज आलोकपात करिवे। मु यही आलोचना को आगो नवा पूर्व मु श्री सोमनाथ सार को अनुरोध करी, सॉरी श्री शुभ्रा मैडम को अनुरोध करी से ओंकार ध्वनि पाठ करेंगे। ओंकार ध्वनि पर आमे विवेक वाणी करवा। शुभ्रा मैडम प्लीज। नमस्कार। धन्यवाद शुभ्रा मैडम, बहुत बहुत बढ़िया। मु एबे हमरो विवेक वाणी पाठ करिया पई श्री सोमनाथ सर को अनुरोध करी विवेक वाणी पाठ करिवे। विवेक वाणी साधारणतः मनुष्य माने तांको जीवनर समस्त दोष से मानंकर सहचर मानंक उपरे लदी दियंती, सेथिरे विफल हेले ईश्वरंक उपरे लदंती किंबा से माने गोटिए काल्पनिक भूत छिड़ा करी ताकू भाग्य बोली कहंती। भाग्य केउठी एवं भाग्य किए? आमे जहा बुनु ताहा ही अमल करू। आमे आम निजर भाग्य निर्माता, काहारी दोष नहीं कि काहार प्रशंसा नहीं। पवन बहुची जेउ जहाज गुड़िकर पाल खोला थिबो से माने ही पवन धरिबे एवं से मानंकर रास्तारे आगेई जिबे, किंतु जेउ जहाजर पाल खोला होई नाही ताहा केबे पवन धरिबो नाही। एहा कोन पवनर दोष? स्वामी विवेकानंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वामी विवेकानंद लोक विवेकवाणी सरला और या परे मु हरिशंकर सर को अनुरोध करी कार्यक्रम को आगे नवा हबे। हरिशंकर सर। धन्यवाद सर। खोर्धा जिला शाखा तरफ आयोजित अंतरंग आलापर 54तम अध्याय को पुणी थे समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज संजना दायित्व प्रदीप सर और आज आलोचक चित्तरंजन सर को विशेष विशेष स्वागत और धन्यवाद जनाऊँ। आज विषय हूँ सांप्रतिक भारतीय अर्थनीति एवं आज विषय को आलोचना करने पूर्व मु कही रखे कि भारतीय अर्थनीतिर इतिहास को जब आम अवलोकन करवा
ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ ସମୃଦ୍ଧି, ଔପନିବେଶିକତା ଶୋଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ତଥା 1991 ମସିହାର ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫେଜେସରେ ଗତି କରିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଇକୋନୋମିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସାର୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ କଣ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଗୁଡିକ ରହିଛି? ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ସଂଗଠନ, ମୋ ନିଜସ୍ୱ ପରିବାର, ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚାପ୍ଟରରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ତ ରହିବ କି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ରହୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭଲି କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହରିଶଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲେ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଭାରତର, ତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟଟିଏ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା, ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ସେ ଯୋଉ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷରେ 3.3% ଗ୍ରୋଥ ରହିଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ରହିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଆ ଆଭରେଜ ଗ୍ରୋଥ ଯୋଉ ରହିବ ସେ ହଉଛି 3.2% କମିଂ 5 years। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ 6ରୁ 7% ଗ୍ରୋଥ 2021ରୁ ଆଚିଭ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ ଆସିଛି, ବଜେଟର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ ଆସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ତ ସେଥିରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି କି 6.4% ରହିଯିବ ଗ୍ରୋଥ। ସାମାନ୍ୟ କମିବ ପୂର୍ବ ଠାରୁ ଯେତିକି ଆକଳନ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 6.4% ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ଉତ୍ସାହଜନକ। ତେବେ ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଇକୋନୋମି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହବା, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବରେ ନିଜକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଅଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେ ହବ। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁରେ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥିତି ବେଶ ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଯୋଉଟା ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ଭାରତ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ସେଇ ସ୍ଲଗିଶନେସ୍ ରହି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେଇ 5% ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆହୁରି କମ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହଁ, ଆମେ ଦରଦାମର ଯୋଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତାକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଇନଫ୍ଲେସନ 4% ପାଖାପାଖି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ରହିଛି, ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଦରଦାମର ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆଉ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସୁଧ ହାର,
सुध जदि बहुत अधिक हुए ताले इकोनॉमी रे और निवेश बेसी हे पारेनी जो इन्वेस्टमेंट आमे जोटा कहउछंती ताको मध्ये स्टेबल करिवार आवश्यकता अछि ए दुईटी फ्रंट रे वर्तमान एई वर्षर कथा केवल नुहे विगत 15-20 वर्ष जदि आमे देखिबा भारतर परफॉर्मेंस ग्लोबल स्टैंडर्ड रे गोटे गोटे अति सकारात्मक रही आसी तेणु मु वर्तमान एतिकिरे कथा रखुची पुणी परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। धन्यवाद सर। मोर परवर्ती प्रश्न एई वर्षर बजेट को नेकी सर एई हरिशंकर फेब्रुआरी मासर सर हरिशंकर सर सर आपण टिके वीडियो ऑन करियो दी भल लागियो। सर सर थैंक्स। वर्तमान आम प्रश्न एई वर्षर बजेट को नेकी करिया चाहे सर एई वर्ष मुख्यतः प्रथम सप्ताह रे जो बजेट आसिला केंद्र सरकारଙ୍କର मुख्यतः 50.56 लक्ष कोटी टंकार विजयबरात करिकी जो वित्तीय नियंत्रण 4.4% धार्य करछंती एवं मुख्यतः माने गुटे फॉर्मूला ज्ञान गरीब यूथ अन्नदाता एवं नारी को नेकी बजेट फ्रेम करछंती सर मु जानिया चाहे एई वर्षर बजेट आम अर्थनैतिक स्थिरता आनिबा किंबा अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई कौन सहायक हो पारिबो एवं एई वर्षर बजेट मुख्यतः जो मिडिल क्लास अछंती तांको पई किपरि भाबे उपयोगी हे पारिबो सर प्लीज। प्रश्नटी बहुत सुंदर एई वर्षर बजेट टी को तो मिडिल क्लास रो बजेट बोली कहा जाउछि कारण पूर्व जिते बजेट सब रहिथिला से बजेट रे जो मध्यम वर्गर जो अपेक्षा थिला से अपेक्षा अनुसार कोटि ना कोटि किछि कमी रहि जाउथिला ए वर्ष पॉलिटिकल रीजन्स हो इकोनॉमिक रीजन्स हो सरकार बड़ बड़ पदक्षेप किछि नै छथि पॉलिटिकल रीजन्स विषय रे कहबा पई मोर योग्यता नाही मो इकोनॉमिक रीजन्स कोन रहिला से विषय रे कहबे हमरो जो इकोनॉमिक सर्वे आसिला से सर्वे रे गोटे जिंस सरकार मध्य पूर्वरु अनुभव करुथिले सर आपनको वॉइस टिके ब्रेक होची सुना जाउनी नहीं मे भी शिलंग रु नेटवर्क इश्यू हो पारे समस्त नमस्कार टिके वेट कले आसी जिवे सर ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इज द नेट चित भाई निजे नउचंती यस चित्त भाई जदि सुनी पारुचंती टिके रिकनेक्ट हे जिवे यदि भलो हबो। सर लेफ्ट हे गोलिंग बोझे लेफ्ट देखुची हां एबे लेफ्ट कले तो जॉइन करिवे नेटवर्क हां नेटवर्क इश्यू नॉर्थ ईस्ट रे जनरली प्रॉब्लम रहउछि बहुत। तो कितने से कष्ट जॉइन हां चित्त भाई जॉइन कले
देखु हेलो सर सुविला हाँ हाँ सर सुना आज्ञा मतलब बैठी गली कंटिन्यू करूँ सर कटि जाइथिला बजेट रे आमे जो प्रयास करे से विषय कथा होतले प्रदीप कथा सुबुत हाँ सर शुभुजी कि टी सर ब्रेक सर वीडियो ऑफ करले बदे सर टिके क्लियर सुना हाँ वीडियो तो ମୁଁ laptop ଛାଡିକି ମୋବାଇଲ ନାଇଁ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଳାପଟା ଏତେ ମଜା ଲାଗେନି। ଠିକ ଅଛି ଶୋଇବାକୁ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡିଭାଇସ ରୁ ଜଏନ କଲି ଏବେ କି ଶୁଭୁଛି ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ओके इट इज ओके सर इट इज ହଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ରେ ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବଜେଟ ଟି ଆମର ହେଲା এই ବଜେଟ ରେ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କୁ ଆମେ କଣ କଣ ସ୍टेप्ସ ନିଆ ଯାଇଛି ଏ କଥା ଯୋଉ आसान रूप नहीं हमर जो इकोनॉमिक ग्रोथ कटि जाउची तथापि कटि जाउची करि परिबे करि परिबे मझिरे सामान्य कटि जाउची ना पूरा कटि आसुची ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଶୁଭୁଛି नहीं नहीं पूरा कटि जाउची मझिरे कटि जाउची पूरा जड़े भाई देखु अन्य रूम हाँ मु तांका कथा मांगी आ गोटे रूम को आसुची आ गोटे रूम आगे 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 आज्ञा तो मु वीडियो बंद कर सेथरे किसी हेल्प मिले ओके तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो ग्रोथ रही से ग्रोथ गोटे बड़ क्रुशियल फैक्टर इकोनॉमिक रो स्टूडेंट्स माने कथा भलो भाबरे जानंती कि गोटे अर्थव्यवस्था रो जतिकि उपादान रही ता भितरे भारत भली अर्थव्यवस्था रे सबुठारु बड़ उपादान होची डोमेस्टिक कंजम्पशन एपरिकी विश्वर विभिन्न जो चैलेंजिंग सिचुएशन समय रे भी 2008 रो जो क्राइसिस थिला जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस स्लो डाउन थिला 2012-13 रे मध्य गोटे रिसेशन आसीथिला आउ ता पूर्वरु 97 समय रे जो ईस्ट एशियन क्राइसिस थिला ये सब समय रे आमे बाकी अर्थव्यवस्था जते प्रभावित सब होथिले आमे से अनुसार प्रभावित हेइ नथिले आमे जानिथिबा जे 2008 क्राइसिस समय रे लेमन ब्रदर भली एते बड़ मल्टीनेशनल बैंक कोलैप्स करि जायथिला किंतु भारत ताको संभाली नहीं थिला सामान्य किछि फिस्कल माने सरकारी नीति किछि माने आर्थिक नीति और रिजर्व बैंक रो किछि नीति एतिकरे आमे निजको संभाली नहीं थिले यार बड़ कारण टी होची इंडियन इकोनॉमी टा होची गोटे डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी आमे एते मात्रा रे ग्लोबलाइज्ड हेइ नाहंती जदिও आज दिन रे सब देश आमे मध्य किछि मात्रा रे ग्लोबलाइज्ड हेइ सारिचंती किंतु हमरो सबुठारु बड़ स्ट्रेंथ आउ जो बड़ बेसिस होची ग्रोथ रो से होची डोमेस्टिक सेक्टर डोमेस्टिक कंजम्पशन अधिक हेले जो प्राय जो उद्योग जो वर्गटी रही उद्योगी माने से माने अधिक उत्पादन करिवे जदि तांकर जहा उत्पादन करूछंती ताकू लोक किनिबे नाही डिमांड हबो नाही ताहले से माने अधिक उत्पादन करिवे नाही तेणु जो डोमेस्टिक डिमांड जदि अधिक हुए
ताहले मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्यान्य जो उत्पादन सब करा जाउची देश भितरे ताहा अधिक हबो आ सेगुडी को अधिक हेले लोक माननको रोजगार मिलिबो आपण जदि जणे इंडस्ट्रियलिस्ट आपणकर जहा प्रोड्यूस करूचंती ताहा मार्केट रे सेल ही जाउची एवं तार ग्रोथ तार डिमांड मध्ये अधिक अछि आपण अधिक प्रोडक्शन करिवे तो अधिक लोक माननको मध्ये नियुक्ति देबे तेणु एम्प्लॉयमेंट टा मध्ये डिपेंड करूची प्रोडक्शन लो ग्रोथ उपरे तो ये गोटे बड़ चिंतार कारण आम देश रे अपोजिशन मध्ये दीर्घ 7-8 वर्ष हबो गवर्नमेंट को घेरुछंती जे आपण बड़ बड़ कथा कहउचंती किंतु रोजगार बेसी दे पारु नाहंती बेरोजगारी चारियाडे बढ़िछि सेति पई डोमेस्टिक सेक्टर रो डिमांड को बढ़ाइबा पई हेले लोकंक पाखरे किछि आय छाड़िबा दरकार दीर्घ वर्ष हबो सरकार जो टैक्स रे सामान्य किछि किछि परिवर्तन करूथिले किछि किछि रियाती दउथिले किंतु एई वर्ष आशा ठारू आहुरी यथेष्ट अधिक एमिति गोटे अरिथमेटिक आसिला जे 12 लाख टंका पर्यंत आ जदि सैलरी अर्नर हेतिबे ताहले 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन रेट तेणु 12,75,000 टंका पर्यंत कौन से टैक्स दबा को पड़िबो नाही एई गोटे बहुत बड़ आश्वस्त मिलिला तेणु जणे व्यक्ति जदि 50,000 1 लाख सर्वाधिक 1,10,000 पर्यंत टैक्स रिबेट पाउचंती ताहले जदि 0.6 बा 0.7 हमरो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हुए अर्थात जति के हमर आय आसे तार केते भाग आमे खर्च करंती जदि 60 भाग आमे खर्च करूथुबा ताहले सीधा सड़क अर्थव्यवस्था को फेरिबो से 60,000 टंका आमे अधिक डिमांड करिबा तेणु ए जो कैलकुलेशन सरकार कले ता आउ सेति पई ए बजेट रे गोटे बड़ रिहाती मिलिची करदाता माननकु जो माने बेसिकली जो मिडिल क्लास कहा जाउची से मिडिल क्लास को बिलोंग करंती इटा गोटे बड़ धरणर कथा हैला आउ गोटे कथा हैला जो आमे कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय अर्थात हमर जो खर्चटा आमे करूछंती जेमती सड़क निर्माण करूछंती कि पोल निर्माण करूछंती नुआ नुआ एयरपोर्ट करूछंती नुआ रेल लाइन बिछौछंती ए जो सब नूतन जो पूंजी निर्माण सब एगुडी को सब अर्थव्यवस्था रे पूंजी रो आख्या दिया जाए पूंजी कहले टंका पैसा को अर्थशास्त्री माने बुझंती नाही से माने रास्ता नूतन कोठाबाड़ी तैयारी करिबा नूतन एयरपोर्ट तैयारी करिबा ए सब जो वास्तविक व्ययगुडी को माने पूंजी निर्माण बोली कहंती तेणु ए पूंजी निर्माणटी मध्य अर्थव्यवस्था प्रति अत्यंत महत्वपूर्ण कारण ए गुडिक हेले आर्थिक अभिवृद्धि हुए भल सड़क हेले प्रोडक्शन रो जो ट्रांसपोर्टेशन भल हेई परिबो भल एयरपोर्ट हेले भल कनेक्टिविटी हबो भल रेल हेले भल कनेक्टिविटी हबो तेणु ए भली भाबरे आमे जदि मेशिनरी ऊपर मध्य खर्च करिबा ताहले हमर गुणवत्ता एवं उत्पादकता वृद्धि पाइबो तेणु ए सब ऊपर खर्च जदि देश करूची ताहले से देशर जो आर्थिक अभिवृद्धि हार खूब भल रहिबो जोटा चाइना दीर्घ वर्ष धरि करी आसुची एबे मध्य करूची तेणु चाइना रो गोटे लंबा समय पई डबल डिजिट ग्रोथ चलीथिला एही 8-10 वर्ष हबो सेथर टिके डिसिलरेशन आसी जे जहा गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया तेणु भारत रे ए पुंजी निर्माण रो गोटे बहुत बड़ आवश्यकता थिला पूर्व 4 बजेट रे सरकार ए पुंजीगत व्ययटी को बढ़ाइथिले पुंजी निर्माण पई जो व्ययटी ए वर्ष आमे देखबा को पाइले जे जो गला वर्ष जोटा करिथिले 11.1 लाख करोड़ 11.1 लाख कोटी टंका पुंजी निर्माण पई भारत सरकार जो व्यय प्रावधान करिथिले ए वर्ष सेटा को सेतिके फ्लैट रखिचंती 11.2 लाख करोड़ मात्र 10,000 कोटी टंका सेतरे वृद्धि करिसंती जोटा कि नगण्य तो या ऊपर बजेट रो जो आलोचना सब हेची तो केते जन कहउचंती जे सरकार निजे जो कथाटा विश्वास करूथिले कि आमे जदी पुंजी निर्माण ले खर्च करिबा ताहले जो उत्पादन तार केते गुणा बढ़िबो किंतु से थ्योरी को सरकार पुनी बैक ट्रैक कले कि एथरो काहे कि कमी होला किंतु आमे जतबे अरिथमेटिक सब देखुचंती सेतबे ए कथा बुझा पडुची ए इलेक्शन ईयर थिला प्रथम जो 3-4 मास तरीकी गोटे आमे जानछन इलेक्शन समय रे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागि जाय से समय रे खर्च करि होबनी तेणु सरकार पाखापाखि 1 लाख कोटी टंका खर्च करि पारले नाही जेति कि गला वर्ष प्रावधान करिथिले सेति पई कहले ठीक अछि तो ए वर्ष आमे से 11
ମାନେ ଯେତିକି ଗଲା ଥର କରିଥିଲେ ସେତିକି ଏଥର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆଉ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବର ପାଇଁ ଯୋଉ ଛାଡ କଲେ ଏଥର, ସେଥର ସରକାରଙ୍କର 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ହବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଚତ ରହିଯାଇଛି, ଏଇଥିରୁ ସେ ଭରପାଇ କରିକି ତାପରେ ପୁଣି ନୂତନ ଉପାୟ ବାହାର କରିବେ କେମିତି ତାର ଯୋଉ ସମାୟୋଜନ କେମିତି ହବ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ଅଛି। ଆମେ ସେ ଆରିଥମେଟିକ ସେ ତର୍କ ଆମର ନିଜର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେ କେତେ ଦୂର ସରକାର ତାକୁ ସେ ସରକାରର ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜି, ସରକାରର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ଥିଲା କି ଆଉ କଣ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଉ କନଜମ୍ପସନ କିଛି ତା ହାତରେ ମାନେ ସରି ଯୋଉ ଇନକମ କିଛି ଛାଡୁଛନ୍ତି କମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣିକି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ପୁଞ୍ଜି ନିର୍ମାଣ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି କମ ସେ କମ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦିଟା ବଡ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଜେଟଟି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦିଓ ତାର କିଛି ଆମେ ସର୍ଟକମିଂସ ବାହାର କରିପାରିବା, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ହରିଶଙ୍କର। थैंक यू सर। सर एई प्रश्न उत्तर रे आपण जो कथा कहिले कि वर्तमान बजट रे सरकार मुख्यतः टैक्स बेस को बढ़ाई टैक्स जो रिबेट मात्रा को वृद्धि कर निश्चित भाव से पुंजी गठन का सहायक हम। तार मु भावे आ गोटे मुख्यतः जोटा कि विरोधी माने भी बहुत समय टार्गेट करन ड्रॉबैक्स रही जदि टैक्स बेस टा बढ़े दे कि टैक्स रिबेट बेसी दौरान अर्थनीति भितर सर लिक्विडिटी परिमाण टा बेसी हम एवं डोमेस्टिक कंजम्पशन टा बढ़िबो। ओई सर डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़िले जदि से मात्रा उत्पादन बढ़ु ना आउ अर्थव्यवस्था आउ गोटे समस्यार सम्मुखीन होता है, सेटा मुद्रास्फीति जो इनफ्लेशन आ बहुत समय विरोधी दल मैंने सरकार को घेरी था। सर मुझे जाना चाहे मुख्यतः से मुद्रास्फीति भाया अर्थनैतिक समस्या को समाधान करने सरकार पाखे दीटा नीति अवलंबन करते, गोटे फिस्काल पॉलिसी वित्तीय नीति आ गोटे मॉनिटरी पॉलिसी। सर मुझे जाना चाहे जो मॉनिटरी पॉलिसी अच्छी से सरकार को जो अनुष्ठान अच्छी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मॉनिटरी पॉलिसी को कार्यकारी करने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन एवं किपरि भूमिका रही सर प्लीज। प्रश्नटी ପାଇଁ ତ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। এই ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ଏନାଲିସିସ୍ ରହିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ कर संग्रह कमेई दबा, ठीक अच्छी जो मध्यम वर्ग रही ताको किसी आश्वस्ति मिलिबो, किंतु सरकार राजस्व प्राप्ति कमिजिब। सरकार राजस्व प्राप्ति जदि कमे ताहले जो फिस्काल डेफिसिट बोले जो वित्तीय घाटा बा नियंट बोली जोटा कहा जाए, से नियंट जदि अधिक हुए ताहले से नियंट पुणी मुद्रास्फीति माने दरदाम वृद्धि आड़ को तार से कारक हेजिबो। ये गोटे थ्योरी। आउ गोटे थ्योरी तार काउंटर माने इकोनॉमिक एनालिसिस जेतोळे आमे करंती सेतोळे गोटे समान जिनिसर विपरीत प्रभाव पड़े। एटा गोटे साइड हेले तार गोटे पॉजिटिव एस्पेक्ट मध्ये रहिछि। पॉजिटिव एस्पेक्ट होछि जदि ग्रोथ हैला, इकोनॉमिक ग्रोथ जदि हुए ताहले ग्रोथ माने बहुत विभिन्न जिनिसर उत्पादन बढ़िबो। यदि उत्पादन बढ़े ताहले दरदाम को से नियंत्रण करे। तेणु केउटा अधिक हबो, एपटरे घाटा अधिक हेले दरदाम बढ़े केमती जदि काहांक मनरे ये प्रश्न आसुथबो तार मु गोटे धाड़ी रे उत्तर देबी। जेतबेले सरकार पाखे नियंट हो जाए, सरकार कौन करती तांकर खर्च गुड़ा को से मेंटेन करबा पई से लोन आड़ को जाती। आजिकल तो एक्सटर्नल लोन विदेश रो लोन निया जाउनी, एबे डोमेस्टिक सेक्टर से लोन इनकम रेट कहा जाए आभ्यंतरीण ऋण। तो सेथरे कौन हुए, सरकार जेतबेले जाके डेट मार्केट भीतर पसे किसी अधिक कर्ज करबा पई प्राइवेट सेक्टर पई हमर जो लोनेबल फंड जोटा कहा जाए से फंड टी कमी जाए। जेतबेले से फंड कमी जाए तार इंपैक्ट कौन पड़े ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ी जाए। कारण टंका धरी निया जाऊ मो पाखरे 1000 टंका अछि लोन दबा पई, किंतु तार डिमांड करबा लोक बहुत अधिक हे गलेनी, तेणु मु कोन करबी अधिक चार्ज करबी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तेणु डेट मार्केट रे जेतेबेले
सरकार निजे जने डेटर हिसाब रे एंट्री करे से समय रे प्राइवेट सेक्टर सहित कम्पीट से करे तो इंटरेस्ट रेट टा बढ़ी जाए इंटरेस्ट रेट बढ़ी गले तो हमर मुद्रास्फीति आड़ को कथा जाए कारण सब जिनस महंगा है जाए इन्वेस्टमेंट कमी जीवो इन्वेस्टमेंट कमी गले प्रोडक्शन कमी जीवो तेणु तार गोटे चक्र आरंभ हो ये हला गोटे साइड किंतु एपट साइड जो आमे लोकों को पाखरे छाड़ुचंती पैसा से माने अधिक डिमांड करिवे प्रोडक्शन अधिक हबो तेणु सरकार तांकर जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री रे जो अर्थंती अर्थशास्त्री मानक द्वारा गोटे आकलन करैथिबे से आकलन रे तांको जणा पड़िथिबो हिस्टोरिकली आमे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करिबारे सफल अछंती एई वर्ष मध्य बजेट रे जो टार्गेट अछि सेटा अछि 4.4% को आमे आसीबा जोटा गला वर्ष ठारू 0.3% कम रहउछि तेणु फिस्कल डेफिसिट बढ़ेबार जो कथा आमे भाबुचंती जेतळेटा कमिले सेटा डेफिसिट बढ़िबो से आर्गुमेंट रो बायर के नांती कारण सरकार निजे आकलन करके कहछि नाही फिस्कल डेफिसिट बढ़िबो नाही कमिबो सेति पई आ सरकार को विश्वास मध्य करा जाई परिबो कारण आज पर्यंत ये सरकार जेतिकी बजेट पेश करिसंती आ जो टार्गेट दैचंती फिस्कल डेफिसिट रे ताको आपण फुल मार्क देबे से ताको मेंटेन करिसंती केवल कोविड जो 2 वर्ष समय रहिला से गोटे व्यतिक्रम थिला से तो गोटे बिल्कुल नुआ व्यवस्था से तोळे करिवा को पडिला 9% बढी हे जेतला फिस्कल डेफिसिट तनो सेटा कथा छाड़ दियंतु व्यतिक्रम हिसाब रे नियंतु बाकी समय रे सरकार जो टार्गेट जहा देइचंती ताको अरुण जेटली को बजेट देखंतु सीतारमण को बजेट देखंतु ये सब बजेट रे से फिस्कल डेफिसिट गुडा अचीव करिसंती सेति पे क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट रो से एंगल ले अछि तणु से गोटे कैलकुलेशन ले कहउचंती 4.4% को आसीबो जोटा के क्वाइट अप्रिशिएबल बाकी जो कथा रहिला हरिशंकर आउ टिके मने पके देबे आरटी कोन थिला कि सरकार ता पई कोन स्टेप्स नउचंती मुद्रास्फीति को कंट्रोल करिया पई ए तो तणु मुद्रास्फीति सरकारी आकलन रे आसुची कि जो फिस्कल ईयर 26 माने 25 26 रे जो एंड होची हम तो 26 बोली कहि परिबा तणु फिस्कल ईयर माने जो आर्थिक वर्ष जोटा 1 एप्रिल लु 31 मार्च पर्यंत गणा जाए 2025-26 ए वर्ष रे मुद्रास्फीति होलसेल प्राइस को आजिकली देखु रहंती से रघुराम राजन को समय रो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखुचंती माने होलसेल प्राइस इंडेक्स ता होची प्रोडक्शन इंडेक्स ता कंज्यूमर प्राइस माने मार्केट रे हम जो रेट रे किणुचंती सेटा को आजिकली देखा जाउची सब बेले से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ता होलसेल प्राइस इंडेक्स तारो अधिक थाए आ सेटा को आजिकली रेफरेंस हिसाब रे निया जाउची अधिकांश क्षेत्र रे तणु ताको टार्गेट करा जायछि कि 4% हबो तो 4% इन्फ्लेशन कोनोसी इश्यू नुहे सामान्य प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था रे ग्रोथ पई मध्ये जरूरी कारण लोकन को पाखरे गोटे इल्यूजन क्रिएट हुए जे मोर लाभ बढ़ी गलानी से आउरी अधिक उत्पादन करंती बा इन्वेस्टमेंट करंती तणु सामान्य राइज जेमति आम मन रे खुशी आम मन खुशी हो जाउची हमको डीए मिलुची जेति कि दरदाम बढ़ी छि ताको कंपेंसेट करिया पई मिलुची किंतु डीए हम पाखो जतरा आसी जाउची आम मन रे गोटे भ्रम सृष्टि होउची जे आम इनकम बढ़ी गलानी तणु आमे खुशी हे कि आउ किछि खर्च करूचंती तो से भली भाबरे माइल्ड इन्फ्लेशन जोटा 4% सेटा गोटे इश्यू नुहे तेणु सरकार टार्गेट रखुचंती फिस्कल डेफिसिट वेल विदिन 4.4% इन्फ्लेशन टार्गेट 4% तेणु सेटा गोटे बड़ इश्यू नुहे आ ताको सेति पई कंफर्टेबल जोन रे सरकार थिबा कारणरू गवर्नमेंट और आरबीआई भितर जो इंटरैक्शन हुए से इंटरैक्शन एथर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रे आसीची जदियो आरबीआई गोटे इंडिपेंडेंट एंटिटी किंतु गवर्नमेंट रो कोन डायरेक्शन रहुची माने गवर्नमेंट रो थॉट प्रोसेस कोन डायरेक्शन मु कहूची माने गवर्नमेंट किछि डायरेक्शन आरबीआई को दोची से कथा हमें कहू नांदी गवर्नमेंट रो जो थॉट प्रोसेस रो डायरेक्शन कोन रहुची ताको आरबीआई मध्ये ऑब्जर्व करे आम देश रे आरबीआई बेसी महत्व दिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पई सेति पई किछि वर्ष कोने कोविड परवर्ती समय रे अपन देखिबे से रिपो रेट को बढ़ी बढ़ी चलथिला काहे कि ना पोस्ट कोविड रो सबुठु बड़ आशंका थिला कि इन्फ्लेशन बढ़ी जिवो जोटा कि से समय 3% को नै आस्थिले शक्तिकांत दास ताकू से दास महोदय ताकू नै कि 6.5% रे पहुंची थिले रिपो रेट को एवं से 6.5 रे लंबा समय धरि के रहिला
11टा मॉनिटरी पॉलिसी जो हैला माने प्रति 3 मास रे से करंती मॉनिटरी पॉलिसी जो आरबीआई डिक्लेयर करे रेट गुडा खास करके रिपो रेट जो थरे रेट टी जति से बढ़े दबो तले बैंक जो लोन गुडा सब महंगा है जीवो जति कमे दबो तले लोन किछ सस्ता है पारे माने हाउसिंग लोन पर्सनल लोन जा भी सब तणु से बिल्कुल ताको समान रखिथिले एई थर 0.25 ताको कमे चंती विभिन्न समय रे हमें देखू जे फिनांस मिनिस्ट्री रो जो नीति जहा को हमें फिस्कल पॉलिसी बोली कहंती आउ मॉनिटरी पॉलिसी अनेक समय हमको देखियो को मिली सेटा काउंटर साइक्लिकल है कि चले से जदि सेठी बढ़ौची ये एठी कमी दिए तालमेल अभाव थाए एथर गोटे भलो तालमेल देखियो को मिली जे आरबीआई मध्य तार रिपो को कमेइची रिपो रेट को कमेइची तो रिपो कमिले इन्वेस्टमेंट बढ़िबार संभावना बढ़ी जाए तेणु इन्वेस्टमेंट बढ़िले ग्रोथ हबो तेणु इकोनॉमी रे जो दुईटी जो पेडल रही फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी गोटाकर मुखिया हला फिनांस मिनिस्ट्री आ गोटे मौद्रिक नीति हला आरबीआई से माने इन्वेस्टमेंट को बढ़ेबे दरदाम को नियंत्रण रखिबे इंटरेस्ट रेट को मध्य गोटे अफोर्डेबल रेट रे रखिया पई से प्रयास करिसंती तेणु स्वागत योग्य उभय नीति एवं एथिपाई वर्तमान ए जो दीटा नीति रे अर्थशास्त्री मान तरफ गोटे भल सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट को मिल जाउछि जे हाँ बहुत भल परिचालना एटा गोटे चलीछि एतमे गोटे गुडविल मध्य चारियाडे क्रिएट होछि हरिशंकर धन्यवाद सर सर आपनको उत्तर रे आपण कोरोना समय रो आलोचना कले मुख्यतः कोरोना समय रे हमर जो वित्तीय नियंत्रण अछि 9.0 ऊपर को मते जाइतिला एवं सही समय मुख्यतः भारत सरकार सही समय जेमि कि आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव भली किछिटा योजना प्रणयन करी मुख्यतः 2.5 लाख करोड़ अधिक टंका व्यवहार करथिले सर मु जानिया को चाहे तार प्रभाव आम भारतीय अर्थनीति प्रति कौन पड़ा एवं आगामी भविष्य में कौन पड़ो हाँ ये गोटे लॉन्ग टर्म विजन रो कथा रही जोटा आत्मनिर्भर भारत तापरे ताकू जोड़ा जाउची विकसित भारत 2047 तेणु ता भितर को टिके जीवा को पड़िबो मु जेति के बुझी पारिछि जे भारत वर्षर सबुठारु जोटा मु फर्स्ट क्वेश्चन लो आंसर हिसाब रे रेस्पोंड करिथिली मैन्युफैक्चरिंग बढ़ू नाही हमर जो विनिर्माण क्षेत्र जोटा कुहा जाए जोटा अर्थव्यवस्थार मेरुदंड बोली ताको कहले अत्युक्ति हब नाही तो सेथरे ग्रोथ हेउनी से बहुत जरूरी हमर जो जीडीपी रो कंपोजिशन हमें जदि देखिबा ताले पाखा पाखी 60% जीडीपी हमर आसुची सेवा क्षेत्र रो आउ 15% पाखा पाखी आसुची हमर कृषि क्षेत्र रो आउ जो रहिला उद्योग क्षेत्र से क्षेत्र रो मात्र 25% हमर जीडीपी आसुची एवं एई जो फिगर टा लंबा समय धरि के स्टैटिक रही ध्रुवक हेकी रही सेतरे किछि परिवर्तन हेउनी 23% थिला केबे 10 वर्ष तळे सरकार जावतीय योजना मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया जहाँ जहाँ सब जावतीय स्कीम्स परे मध्य ये मात्र आसिकी 2% पाखापाखि यार बढ़ी जोटा गोटे सिग्निफिकेंट राइज बोली कुहाजिबो नाही चाइनीज इकोनॉमी को आपण देखंतु अराउंड 48% तार जीडीपी आसुची मैन्युफैक्चरिंग रो मैन्युफैक्चरिंग गोटे रियल सेक्टर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दीटा जदि स्ट्रांग है कि थाए ताले सेवा क्षेत्र रो ग्रोथ टा सस्टेनेबल थाई पारे कारण सर्विस टा आपण देबे काको जदि एग्रीकल्चर आउ इंडस्ट्री ए दीटा सेक्टर स्ट्रांग रुहे ताहले सेवा क्षेत्र सस्टेनेबल ग्रोथ करि पारे भारत वर्षर जो ग्रोथ आमे देखि आछन केते वर्ष जो लास्ट 3 डिकेड्स आफ्टर लिबरलाइजेशन 1991 परे ए ग्रोथ टा मैक्सिमम सर्विस सेक्टर पई हेछि तनु ये जो बड़ चिंता रहिछि कि आमे उद्योग रो वृद्धि बा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर केमिति बढ़ेबा देश रे उत्पादन जो बहुत गुडे कंपनी स्टार्टअप जे करूचंती से माने मध्ये सर्विस सेक्टर रे आसुचंती प्रोडक्शन सेक्टर रे बहुत कम आसुचंती तेणु याको केमिति बढ़ा जीवो सेति पई सरकार विभिन्न प्रकार गोटे बड़ स्लोगन देले आत्मनिर्भर एवं ता भितर से गोटे स्कीम नै के आसिले जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम गोटे नै के आसिले
ଏବଂ ତାକୁ କେତୋଟି ଲିମିଟେଡ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ସେକ୍ଟରକୁ ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କୁ ଦେଇଛନ୍ତି PLI ସ୍କିମ ର ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ଟି, ଆଉ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देइचंती, आ गोटे होची ऑटोमोटिव सेक्टर। तेणु ए चारोटी सेक्टर को विशेष करी PLI स्कीम भितरे जोड़ा जाइछि। तो सेथरे इंपैक्ट मध्ये तारे बे आसिलानी। PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम माने कंपनी को कहि दिया गला जे तमे जदी अधिक प्रोडक्शन करि ताहले आमे तुमको तुम सेल अनुसार आमे देखिबु तुम केते सेल करूथुलो, एबे केते सेल करूछो। जदी अधिक सेल्स करूछो ताहले आमे आगामी 5-7 वर्ष पई तुमको एतिकी इंसेंटिव दबु। तेणु ए जो स्कीम टी से करिसंती, ए स्कीम रे वर्तमान आमे देखुचंती प्रधानमंत्री मध्ये तांकर केते स्पीच रे सब कथा रखिसंती कि आमे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रे आमे वर्तमान गोटे मेजर पावर हिसाब रे आसुचंती, जोटा आमे आगुरु किछि दिन पूर्वरु किछि वर्ष पूर्वरु देखिबे नोकिया, मोटोरोला ए सब कंपनी माने सब विदेशी कंपनी एवं विदेशरू मध्ये किछि इंपोर्ट करा जाउथुला। एबे जदियो विदेशी कंपनी किछि थिबे किंतु सेमाने भारत वर्ष रे आसी मैन्युफैक्चर करूचंती। तेणु मोबाइल टेलीफोनी एथरे भारतर आउ गोटे जो सेमीकंडक्टर जो रहिछि, तो सेमीकंडक्टर रे मध्ये हमरो जो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग आसी जाउछि। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रे मध्ये मैन्युफैक्चरिंग जो जतिके डिपेंडेंस थिला बाहरु आमे जतिके इंपोर्ट करूथुले एगुडी को कमिछि। तेणु ए स्कीम रे किछि इंपैक्ट आसीछि। आउ गोटे वो माननीय विजय सर उपस्थित अछंती, आमे संबलपुर पाठ्यचक्र रे ए विषय रे कथा रखुथुलु। डिफेंस सेक्टर रे आत्मनिर्भर भारत रो गोटे पदक्षेप निया जाइछि। आमे बहुत गुडे डिफेंस वेपन्स विदेश रु इंपोर्ट करूथुले एवं हमर गोटे बड़ माने सिंहभाग गोटे से इंपोर्ट रे खर्च हे जाउथुला। तापरे सरकार खास करी 2016 मसिया रे गोटे डिसीजन नेथिले कि आमे एठी ए जिंस गुडा को तार सब्स्टिट्यूट गुडा आम देश रे बनेबा। तेणु ए जो प्रकार प्रयास टी आरंभ हैला, वर्तमान आमे डिफेंस सेक्टर रे 21 गला वर्ष रे जो कथा आसुची 2023 रे कथा कहूची 21,000 कोटी टंका गोटे बहुत बड़ अमाउंट नुहे, किंतु जीरो बेस रे जेतले आमे आरंभ करूचंती तो आमे 21,000 कोटी टंका रो गोटे एक्सपोर्ट खास माने पाखा पाखी 25 टी देश को आमे एक्सपोर्ट आरंभ कर देइचंती। तेणु आज दिन रे मध्ये इंडिया नंबर 1 डिफेंस इंपोर्टर अछि, किंतु एक्सपोर्टर लिस्ट रे हमर ना नथिला। एबे आमे 25 नंबर देश रे पहुंचिले, 25 रे जमा नथिले। तेणु ए जगह रे आमे पहुंची गलेनी कि आमे एक्सपोर्ट करबा आरंभ करिसंती। ए जो पॉलिसी रो इंपैक्ट धीरे धीरे अदर सेक्टर जे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रहिछि से सेक्टर रे मध्ये को एक्सटेंड करा जाउची। आउरी केतोटी सेक्टर को समान आइडेंटिफाई करूछंती। तेणु से जो PLI स्कीम तो केते तार इंपैक्ट पड़िछि, जने अर्थशास्त्र छात्र हिसाब रे मु बिना अध्ययन बिना डाटा एनालिसिस रे तापर किछि स्टेटमेंट दे परिबिनी कि केते इंपैक्ट, किंतु एमती केतेटा एग्जांपल केवल मु समस्तंकर ज्ञाति पई सामना को आणुची। कंक्रीट स्टेटमेंट सेटा रिसर्च रो मैटर, ताको आमे भलो भाबरे एनालिसिस कला परे कि गवर्नमेंट केते या पई खर्च कला, रिटर्न केते आसिला, गोटे डिटेल्ड कैलिब्रेशन रो आवश्यकता अछि। तेणु वर्तमान मोर लिमिटेड इनफॉरमेशन रो मु एतिकी लिमिटेड स्टेटमेंट ही दे परिबी। हरिशंकर धन्यवाद सर। आपण को उत्तर रे सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कथा को कहिले सर। एई परिप्रेक्षी मु गोटे कथा कहबी कि मुख्यतः 1991 मसिया परवर्ती नूतन अर्थनैतिक संस्कार परवर्ती समय रे भारत निज अर्थनीति निज अर्थव्यवस्था को आंतरिक स्तर रे खोला गढिथा एवं सेही वर्ष ठारू आमे देखिबा वर्तमान समय रे पृथ्वी सब देश सहित अंतः निर्भरशीलतार सहित वाणिज्य व्यवसाय करछन्ती। किंतु सर आमे जदि किछि वर्षर तथ्य अध्ययन करिबा विश्व स्तर रे बहुत गुडाए कन्फ्लिक्ट बहुत गुडाए वार इमरजेंसी देखा जाइछि, जेमते कि रूसियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट 2022 मसिया हो किंबा मिडिल ईस्ट रो इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट हो किंबा आम पड़ोसी राज्य म्यांमार पड़ोसी देश जेमती म्यांमार पाकिस्तान बांग्लादेश किंबा श्रीलंका रो तांकर सिविल कन्फ्लिक्ट हो। सर मु जानिया चाहे सेही सब कन्फ्लिक्ट मानकर भारतीय अर्थनीति प्रति कोन प्रभाव पड़िछि? ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड रे केवल भारत नुहे कौन गोटे देश रे किछि अघटन घटिले
ଆଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟି ବିଶ୍ୱଭରରେ ପଡିବ, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁ ଆମେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଯୋଉ ହାମାସ ଯୋଉ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ୱାର ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ତୈଳ ଯୋଉ ରିଜର୍ଭ ଜାଗାଟି ହଉଛି ସେଇଠି। ସେ ଯୋଉ ଆରବ ନେସନ ଗୁଡା ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ମାନେ ଭାରତ ତ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର୍ସ ଅଫ ପିଓଏଲ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଅଏଲ ଆଣ୍ଡ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର ହଉଛି ତ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜରୁର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବା କଥା। ୱାର ତାର ସପ୍ଲାଏ ଯେତେବେଳେ ୱାର ହୁଏ ନର୍ମାଲି ସପ୍ଲାଏଟି ସେ ସମୟରେ କମିଯାଏ, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଗୋଟେ ନେଲା କି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ସୋର୍ସେସ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିଲା, କି ଭାରତ ରଷିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିଥିବା କି ଯୋଉ ବାଇଡେନ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ସିଏ ସେ ସମୟରେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ଆମେ ମାନେ ରଷିଆ ଯିଏକି ୟୁକ୍ରେନ ସାଙ୍ଗରେ ୱାରରେ ଏନଗେଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍କସନ କରୁଛୁ ମାନେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜିସନ କରୁଛୁ କି ତାଠୁ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଦେଶଟା ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାର ତେଲ ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେ ସମୟରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପ୍ରେସର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଜୟଶଙ୍କର କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ କି ଆମ ପାଇଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି ପାରାମାଉଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମର କମ୍ପଲସନ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ସୋର୍ସିଂ କରି ଭାରତ ତାର ଯୋଉ ଅଏଲ ଇକୋନୋମିଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥା, ମେଜର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମର ଅଏଲ ସୋର୍ସରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ନର୍ମାଲାଇଜ କରିପାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟି ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ ର ବି ଗୋଟେ ବଡ ରୋଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲିଡରସିପ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କେମିତି ଫେସ୍ କରିବ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ସବୁ କରାଗଲା ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 3 years ର ଯୋଉ ୱାର ଇକୋନୋମି କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ କମେଣ୍ଡେବଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ସାର୍। ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିବି ହରିଶଙ୍କର, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଫେସ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟଟା ଆମ ପାଇଁ ଓପନ ଅପ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକି ବିକ୍ରି କରିଦବା ଦୁନିଆକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ୱାର ରିଭେନ ଇକୋନୋମି ଅଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ମାର୍କେଟଟି ସ୍କୁଇଜ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପଠଉଥିଲେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପଠଉଥିଲେ, ସେ ଟ୍ରେଡଟି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଇଜ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଡ୍ରିଭେନ ଇକୋନୋମିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସରକାର ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ବୁନିଆଦୀ ସେକ୍ଟର ଗୁଡିକ ରହିଛି ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପଛରେ ଗୋଟେ 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 ତର୍କ ବା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି କି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ଏଇଆ ହିଁ ହବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ଆଉ ଯୋଉଟା ସରକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଜିର ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ now the India is planning for the Dixit Bharat 2047 and ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢି କିମ୍ବା ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ କେମିତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କଣ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଦେଖୁଛି ମତେ ଦୁଇଟି ଭାରତ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଗୋଟିଏ ହାଇ ଫ୍ଲାଇଂ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବରେ ଆମେ ପଶିଯିବା କି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଜୋନକୁ ଯିବା କି ଆମ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯିବା, ଯୋଉ ଆମର ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ଏଲିଟ୍ସ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ ଆରାଇଭଡ।
किंतु आउ गोटे जो रही जेतेबेले आमे हमर जो भारत बोली जहाको कहउचंती जेमति एटा को इंडिया कहउचंती ताको भारत बोली लोक कहउचंती मे बी सेटा ल्यूटेन दिल्ली रो से टर्म किंतु से जो रही कि अशिक्षा तापरे सेमानकर ट्रेनिंग स्किलिंग ये सब रो अभाव एम्प्लॉयमेंट नाही तो ये जो भारत को आमे देखुचंती गां को जेतोले आमे देखुचंती जे गाँर अवस्था वर्तमान कौन अच्छी जहाँकर किसी करिवार अच्छी से सहर मुआ है कि पळै आछंती आ गाँ रे जे रही जाइछंती सेठी वर्तमान कौन कौन सेठी की प्रोडक्शन होची एग्रीकल्चर लोक 6 मास काम करथुले वर्तमान मेशिनाइजेशन होबा परे 15 दिन काम करी रिमेनिंग टाइम से माने केमती यूज करूचंती जो ड्रग्स एडिक्शन ये सब रो मात्रा केमती जाउची तेणु से सब दिग को जतबेले मध्ये आमे चिंतन करूचंती बहुत बड़ चिंतार विषय थाए कि केमिति आमे ई चैलेंज गुडा को फेस करि परिबा तेणु दुईटी जाके गोटे पैरेलल सिस्टम चलीची तेणु गोटे पटरे बहुत गुडे प्रोस्पेक्ट थिला बेले आ गोटे पटरे बहुत गुडे चैलेंजेस सब रही आसी सेति पई जो प्रश्न थिला कि युवक मानक पई बा जो माने यंग इकोनॉमिस्ट अछंती से माने कोन करिवे से माने कम से कम ए तथ्य गुडी को उजागर करि परिबे से इंडिया को भी देखिबे भारत को भी देखिबे देखि कि ता भितरे कोनोसी गोटे लिंकेज एस्टैब्लिश करि परिबे जेमति से जो इंडिया डेवलप्ड इंडिया ए जो चैलेंजिंग भारत को सांगरे नै कि गोटे विकास करि परिबे आ सेति पई जो बिग डाटा मशीन लर्निंग कोन कोन सब आजिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब इंफॉर्मेशन एज रे आमे इनोवेटिव वे बाहर करबा दरकार सो इकोनॉमिक लिंकेज या भितरे एस्टैब्लिश करी आ यार ट्रांसफॉर्मेशन केमती हमें करि परिबा धन्यवाद सर आज विषय सांप्रतिक भारतीय अर्थनीति उपरे पुंखानुपुंख भाव आलोचना कर धन्यवाद देवी वर्तमान श्रोता बंधु मान अनुरोध करती विषय संपर्कित जहाँ जदि कहार किसी मंतव्य थाए कि प्रश्न थाए निजर माइक ऑन करके सार को पचारि पारिबे मोर गोटे प्रश्न थिला जे जदि सांप्रतिक परिस्थिति रे हमें देखा जाए आज जो भारतीय अर्थनीति को हमें कंपेयर करवा जे इंडिया रो इकोनॉमी और भारत रो इकोनॉमी चित्त भाई को मु पचारिबी जे जदि हिसाब से इंडिया और भारत इकोनॉमी की जदि पसंद करती ताने दिटे को कंपेयर करंती ताहेले सेतिकी पर्यंत सुनी पाली तापरे प्रश्न कोन थिले प्रदीप भाई सर प्रदीप सर अच्छा सेतिकी मो सुनी परिले जोटी प्रश्नटी थिला सर को बोधी नेटवर्क इश्यू थिबो आ जदि कि माने श्रोता बंधु किछि पचारे चाहते पचारि पारि कुमार भाई कोन चाहउछंती पचारिबार किछि नै किंतु कमेंट्स को अछि लास्ट आपन को एटा बहुत भल लागला कंफ्यूजन ए भारत इकोनॉमी आ इंडियन इकोनॉमी ते किंतु वर्तमान जो सिचुएशन आछि हम ट्रम्प रो एफेक्ट किछि पड़िबो ई अर्थनीति ऊपर हमर यो करे एना ट्रम्प टैक्स इमती बढ़िलेनी ताको येरु ट्रम्प तो प्रत्येक दिन गोटे गोटे नुआ नुआ कथा नौचंती एबे नेले कि सिटीजनशिप जोटा बाय बर्थ सेटा को से अलाउ करिवे नाही जो माने हम भारतीय जेंके सेठी रही जाइछंती तांकर पिला जे हेबे ऑटोमेटिक अमेरिकन हेबे ये संभावनाटा को से वर्तमान निरस्त करूचंती तापरे एबे पुनी 2 दिन तळे गोटे कथा आनिचंती कि ब्रिक्स नेशन ऊपरे आमे गोटे सैंक्शन इंपोज कर देबी माने टैक्स बसै देबी जदी से माने डॉलर टा को काउंट माने कंसीडर न करिवे कारण एबे हम देखबा चाइना डी डॉलराइजेशन आरंभ कर देछि रशिया मध्य से या करि पारे तणु से कहउचंती जो हमर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम जो कहउचंती यूएस बिलियन 630 माने $630 बिलियन हम पाखरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अछि माने डॉलर को लिंक करिकि हमें सब जिनिस माने डॉलर टर्म रे हमें रखुचंती एमाने जो रिटालिएशन मेजर जोटा नौचंती वर्तमान कनाडा और चाइना ऊपर से जो बढ़े देले जो टैरिफ टा ट्रम्प असला परे तणु से दीटा के कंट्री वर्तमान इमीडिएटली कनाडा मध्ये से 25% टैरिफ इंपोज कर देला यूएस कमोडिटी ऊपर चाइना मध्ये
से रिटेलिएशन आड़ को जाउची तापर चाइना आ गोटे स्टेप आगो जाउची कि वी विल डी डॉलराइज हम रिजर्व को हमें सुना कि अन्य सोर्स रे रखिबो बट नॉट इन डॉलर टर्म्स तनो ट्रम्प सेठी करा जदि न रखिबो देन जो ब्रिक्स नेशन जो 10टा देश ता भितरे अछंती ब्राजील रशिया इंडिया चाइना ये जो सब देश साउथ अफ्रीका 10टा देश मु डी डॉलराइज जदि करबे इमीडिएटली सो ए काइंड ऑफ टैरिफ वार जोटा कि 1950s रो जो प्रोटेक्शनिस्ट रेजिम थिला से आड़ को कथा जाउची तेणु वर्तमान आमे वाचफुल तो समस्ते रहिबा सरकार मध्य रहिबे किंतु गोटे कंक्रीट स्टेटमेंट दिया जाय परिबोनी वर्तमान आम प्राइम मिनिस्टर जाइचंती सेठी कि तांकर अच्छा मित्र ट्रम्प से कोन इंडिया संगे इंडिया पई की डील करके आसुचंती सो डिप्लोमेसी केमिति को हैंडल करूची ता सहित इंडिया डोमेस्टिकली केते राइज करूची बियॉन्ड यूएस आमे केते मार्केट एक्सप्लोर करि परुचंती जोटा हमर लुक ईस्ट पॉलिसी माने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कि अफ्रीकन कंट्री मान को फोकस करिवार जो कथा रहिछि कि डाइवर्सिफाई करिवा हमर ट्रेड टाकू तेणु एको आमे केते मात्रा रे करिवा पई सक्षम होबा सेटा कथा किंतु मो पूर्वर जो कथा कहिछि बहुत बहुत बड़ इंपैक्ट पड़िबो नाही काहे कि ना इंडियन इकोनॉमी आज दिन रे मध्य डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी सर नहीं, एति वर्तमान कहि परिबे इंडिया चाहे- लॉट क्रिएट्स नॉट ए नहीं, इंडिया माने चाहे- कंक्लूसिव स्टेटमेंट आज्ञा सर इंडिया नहीं इंडिया चाहे टेक्टफुली वर्तमान डी डॉलराइजेशन आड़ को जिबाटा बेटर बोली भाबुची टेक्टफुली किंतु फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट रे स्टेटमेंट देइचंती कि वी डोंट हैव एनी सच प्लान हमें सेमती किछि करिया से देबे ओपनली देबे किंतु प्रिपेयर हवा कथा भाबुची इंडिया प्रिपेयर हवा कथा वर्तमान अल्टरनेटिव करेंसी होची गोल्ड तेणु गोल्ड को जदि हमें रिजर्व करके रखिबा तेणु गोल्ड प्राइस टा इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे स्काई रॉकेट करि जिवो इंडिया रे गोल्ड टा को गोटे कमोडिटी हिसाब रे केवल ट्रेड करा जायनी एठी गोटे डोमेस्टिक कंजम्पशन मध्ये गोल्ड पई रुहे आपण बाहागर करिवे मंगलसूत्रटी हारटी जावतीय जौतुक ये सब देबे तेणु ये जो इंडियन इकोनॉमी रो गोटे गोल्ड लिनेज जोटा रहिछि तेणु गोल्ड स्टैंडर्ड को माने गोल्ड को गोटे अल्टरनेटिव करेंसी हिसाब रे रखिबार जदि हमें रखिबा तार बेसी नेगेटिव इफेक्ट पड़ि जिवो बोली डाउट अछि सेति पई भारत सरकार गोटे कॉशस स्टेटमेंट देइचंती वी डोंट हैव एनी प्लान टू डी डॉलराइज सर बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर सर समस्त को धन्यवाद सर हमें अंतिम सर पर्याय आ गोटे लास्ट प्रश्न सर आ गोटे प्रश्न सर 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 हमर प्रश्न हला सर सर आम देश 2070 सुधा माने नेट कार्बन एमिशन जीरो कंट्री हेबा पई माने हमर जो क्लाइमेट समिट हेला सेठी डिक्लेयर करिसंते एवं सर आम वर्तमान आम देश माने विकसित देश हेबा पई बाय 2047 हेबा को चाहूची एवं आमे सेही समय रे मध्ये आमे माने क्लाइमेट चेंज को फोकस करू जे हमको वर्तमान विकसित देश हेबा को बेसी माने हमर कंपनी गुडा को फ्लोरिश हेबा दरकार ताहेले हमर इमिशन टा भी बढ़िबो तो एटा को आपण केमिति देखंती एवं वर्तमान बजेट रे माने जो हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री हेबा को माने हम सरकार माने एटा टारगेट रखिसंते सेथि पई कोन सब प्रोविजन बा पदक्षेप नै छंते ये गोटे बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन गोटे आउ एको मो भली लोकटी कोन गोटे माने आंसर दबो सेटा होची बड़ माने एते गुरुत्वपूर्ण नुहे आमे जेतबेले प्रोडक्शन बढ़ेबा हमर कार्बन एमिशन बढ़िबा स्वाभाविक जदियो आमे बहुत गुडे क्लेम करूछंती कि आमे क्लीन एनर्जी जनरेट करूछंती किंतु क्लीन एनर्जी पई ए बजेट रे सपोज से दे देले कि न्यूक्लियर पावर जदि आमे जनरेट करबा बट न्यूक्लियर पावर कैन नेवर बी क्लेम्ड एज ए क्लीन एनर्जी आमे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ऊपर हमर जो फोकस अछि खास करके किछि आमे राइज करिसंती सोलर एनर्जी जनरेट करिबारे आ सरकार मैसिवली ताको सब्सिडाइज करिसंती कि रूफटॉप सोलर पैनल जो ए बजेट रे मध्ये बहुत गुडी आछि 1 करोड़ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट ई सबरो कथा आछि कि निज घर रो जति कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट अछि ताको आमे जनरेट कर दे परिबा किंतु माइल्स टू गो एगुडी को वर्तमान विजन रे अछि किछि किछि इनिशिएटिव निया जायछि किंतु ग्राउंड रियलिटी माने जो समुद्र को संख्या बोली कह जाए से संख्या मध्ये नाही बिंदु हे कि मात्र अछि तेणु दिस इज ए वेरी माने क्लाइमेट चेंज कार्बन एमिशन ये जो कंसर्न सब रहिछि आ इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे एको जीरो एमिशन जो स्थिति को आनिबा एगुडी को कथा कहिबा प्लान करिबा ए सब रे तो अछि बट दैट इज ए डॉन्टिंग टास्क
so it needs a lot of calibration, lot of discussion, lot of focused initiative. ତେଣୁ ଏତିକି କେବଳ କହିପାରିବି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନା ସମୟ ଅଛି ନା ତାର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କିଛି ଟଲ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇ ପାରିବା କି ହଁ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନକୁ ଆସିଗଲେଣି ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଇ ପାଠଚକ୍ରର ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ଧନ୍ୟବାଦ ହରିଶଙ୍କର ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ଏତେ ଭିତର ମୋର ମାର୍ମିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଯିଏ ତା ଭିତରେ ପଶିଥିବ ସିଏ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏମିତି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେମିତି ଆପଣ ତିଆରି କଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଗ୍ରିଲିଂ କରିବା ସେତେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନଲେଜର ଗନ୍ଥାଘର। ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଗ୍ରିଲିଂ କରିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର, ସିଏ ଆଜିର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ବେହେରା ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ହେବ ଜଏନ୍ କରିବି, ଯଦି ଦେହ ପରମିଶନ ନଦେଲା ଜଏନ୍ କରିପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ସମୟ ହେଲାଣି, ଧନ୍ୟବାଦକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଘରୋଇ କଥା ଫର୍ମାଲିଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଶାନ୍ତି ପାଠ ଆଡକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଶେଷ କରିକି ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ। ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡିଂ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ।